Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. So, in today's class, our topic of discussion is learning from text. So, in machine learning, this topic is very important because nowadays there are lot of documents on the internet that is based on the text. Like हमारे पास जितनी भी सोशल वेबसाइट्स हैं, ट्विटर है, हमारे पास फेसबुक है, या इसके अलावा बहुत सारे और हमारे पास जो वेब पेजेस हैं उनमें जो डाटा है वो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ वी कैन learn from the text by using different machine learning techniques. So far we have discussed about the different classification techniques like a knife-based classifier, support vector machine, decision tree, and then later we discuss about the clustering mechanism like k-mean clustering and hierarchical clustering. And in the later lectures, we discuss about the very important pre-processing techniques like feature scaling and feature selection, and we also learn about the Beka tool, and then we also implement few of important algorithm in Python. Right. So in today class, our topic is learning from text, and then we will try to understand the concept of words and how we can use words in sklearn, and finally we will try to learn about the NLT or natural language toolkit. So as I said, there are a lot of online data is in a text like web, email, and all these documents contain lot of text. And then of course it's not possible to get some useful information from the given pages or to extract some knowledge from the websites. We of course must need to apply some machine learning algorithm. So Google, Facebook, Yahoo, they apply different machine learning on text, right? So the next is, what will be the input feature in case we input a text statement to any classifier. So let's go for one example. Here we have two sentences. The one is the nice day and the other one is a very nice day. And let's assume we are going to input these two statements to the SVM, and SVM need to give us some after some classification, right? So the question is, what will be the input dimension for these statements when we pass to the SVM, right? If we just look at the first statement, so in the first statement we have two features, so it's very hard to tell what will be the number of input feature. Why? Because in the first sentence there is only a two feature, while in the second and sentence we have four features. So it is not easy, either it's two or four. So it means while we have a long statement or a long email, so there will be a more number of feature for the classifier. So what should be the solution? Because it's not feasible to pass this high dimension feature to a classifier. So the solution is bag of words. So what is a bag of words? Bag of words is a way
of extracting feature from text for use in modeling, such as with machine learning algorithm. And Bhagavat's approach is very simple, flexible, and we can extract feature from the documents in a number of ways. Right? So, in case of Bhagavat, we need to represent or we need to count the occurrence of words within a document. हम यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास किसी भी एक डॉक्यूमेंट के अंदर किसी वर्ड की फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट? So, Bega word involves two concepts. The first is vocabulary of known words, and the second thing is measure the presence of known words. Right. So, and Bega words is widely used. हमारे पास जो एक काफ़ी important और हमारे पास currently एक बहुत hot dimension है, hot area है जहाँ पे डिफरेंट मशीन लर्निंग टेक्निक्स पे काम हो रहा है, दैट इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रूम है इस एरिया के अंदर, बिकॉज देर आर हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, और इंटरनेट पे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर हैं। लेट्स सपोज जैसे उर्दू लैंग्वेज है, तो उर्दू लैंग्वेज पे हम डिफरेंट किस्म की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को अप्लाई करके उनकी क्लासिफिकेशंस या उनसे हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की जा सकती है। हमारे पास इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो है वो इसके अलावा हमारे पास जो है वो जो इमेजेस हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पॉसिबल है। और इसके अलावा जो बैगा वर्ड्स को हम यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, और विदाउट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स। तो हम जो है वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन को भी रिट्रीव कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट डॉक्यूमेंट से बाय यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक्स। डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन है हमारे पास जिसमें हम बैगा वर्ड्स अप्रोच को यूज़ किया जा सकता है। तो हमारे पास जो एक process है, the process is we just take documents as a clean text, then we go for the tokenization, and we build vocabulary, and finally we generate vectors. We will use one example to learn how we can just generate vector from the clean text. हम अभी जो है एक एग्जाम्पल को भी डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह जो है वो वेक्टर्स को जनरेट कर सकते हैं। सो लर्निंग फ्रॉम टेक्स्ट में जो अभी हम बात कर रहे थे कि बैगा वर्ड्स में बेसिकली हम फीचर एक्सट्रैक्शन हमने करनी है, और फीचर एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें अक्रस ऑफ वर्ड्स जो है उसको हमें काउंट करना है। लेट्स से हियर वी हैव टू sentences or statements. The one is a nice day and the other one is a very nice day. So when we just input these two statements with the Vega words technique, so हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है, हम लेट्स से ये हमारे पास डिक्शनरी है जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स हैं, नाइस, वेरी, डे, ही, शी, लव। सो वी नीड टू जस्ट काउंट द वर्ड, क्योंकि हम इन्हीं वर्ड्स की बेसिस पे डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन करेंगे हमारे पास। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में देखें तो नाइस जो है वो उसकी अक्रस 1 है, वेरी 0, डे 1, ही, शी, लव जो है वो हमारे पास 0 है, राइट? सो द सेम स्टेप हम अप्लाई करेंगे फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ वेरी नाइस डे। कि हमारे पास हम बैगावर टेक्निक को अप्लाई करते हैं और उसमें हमारे पास जो है वो नाइस 1 टाइम, वेरी 1 टाइम, डे 1 टाइम है, और ये जो है वो हमारे पास लो इन्फॉर्मेशन वर्ड है क्योंकि हमें यहाँ पे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। सो हमने यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं उनके जो वर्ड काउंट्स हैं उनको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इन सम स्टेटमेंट द वन वर्ड मे occur at more than once, like the day. Here it's occur 2 times, and then I occur 1 time, and the other remaining words are occurrence is 0, right? So by using this technique, we can just count the number of the words in each statement. So there are few very important
question on the Bega words. The first is, डज द वर्ड ऑर्डर मैटर? जो अभी हमने बैगा वर्ड्स की बात की है, इसमें क्या वर्ड ऑर्डर मैटर कर रहा है हमारे पास? सो द आंसर इज नो. वाई? बिकॉज वी डोंट कंसीडर कि हमारे पास है वो कौन सा वर्ड किस ऑर्डर में आ रहा है. हमने जस्ट उसके काउंट या उसकी फ्रिक्वेंसी की हमने बात की है, राइट? सो डू लॉन्ग फ्रेजेस गिव डिफरेंट इनपुट फीचर? ऑफ कोर्स यस. अभी हमने पहले भी ये बात की है. जब हमने इसको स्टार्ट किया तो हमने ये कहा कि हमारे पास जो लॉन्ग फ्रेजेस होंगे उसमें नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स जो होंगे वो हमारे पास ज़्यादा होंगे. द थर्ड क्वेश्चन इज, कैन वी हैंडल कॉम्प्लेक्स phrases like Chicago Bull? So the answer is no. Why? Because when we Google this word Chicago Bull, so it initially ये हमें जो सर्च रिजल्ट देता था उसमें, बिकॉज शिकागो इज द नेम ऑफ अ सिटी and bulls is the name of the animal. So while we are searching this word on a Google, so it search result हमें जो है वो many reference of city Chicago and many reference of bulls animal. However, डिक्शनरी को मॉडिफाई किया गया और शिकागो बुल्स जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फ्रेज यूज़ कर रही है, बिकॉज शिकागो बुल इज़ द नेम ऑफ बास्केटबॉल टीम है. और अब हम अगर गूगल में सर्च करें तो ये हमें जो है वो शिकागो बुल जो बास्केटबॉल टीम है वही आउटपुट दे रहा होता है. सो इट मीन कि हमारे पास जो बैगा वर्ड्स है, हम we need some more techniques. So we need some more basket to handle complex phrases while using bag of words. So the next is bag of words in sklearn या हम count vectorizer की बात करते हैं हमारे पास. So sklearn count vectorizer is used to transform a corpora कहते हैं कि जो हमारे पास एक collection of documents. हम कॉर्पोरस या कॉर्पोरा का जो वर्ड यूज़ करते होते हैं वो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं. ऑफ द टेक्स्ट टू अ वेक्टर और टर्म और टोकन काउंट के लिए हम यूज़ करते हैं. सो काउंट वेक्टराइजर जो है वो हम किसी भी कॉर्पोरा से उसके वेक्टर या टोकन काउंट्स के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं. And count vectorizer also provide the capability to pre-process your text data prior to generating the vector representation, right? And making it a flexible feature representation module for text. So the steps we need to follow in count vectorizer are: first we need to tokenize a sentence, then we need to apply tokenization to all sentences, and then we build vocabulary and generate vectors. So these are the steps we will follow while dealing with the count vectorization in SQL. So let's take a one example. यहाँ पे हमारे पास हम we have a two sentences like John likes to watch movies, Mary likes movie too, and John also like to watch football games. सो हम इन दीज टू सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. ठीक है जी. हमने यहाँ पे इन सेंटेंसेस को फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को यहाँ पे हमने कलेक्शन ऑफ वर्ड से रिप्रेजेंट कर दिया. यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो हमने यहाँ पे ये किया कि बेसिकली हमने हर सेंटेंस में जो अक्रस है वर्ड्स की, जैसे फर्स्ट यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास लाइक्स जो है वो हमारे पास टू टाइम यहाँ पे अक्कर हो रहा है. तो हम यहाँ पे जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं उनके काउंट को हमने मेंशन किया. So let's assume these sentences are part of document, and then below is the combined word frequency of our entire document. And in this case, both sentences are taken into account. Like John हमारे पास यहाँ पे देखें टू टाइम, लाइक्स फर्स्ट सेंटेंस में टू टाइम था, सेकंड में वन था. इट्स टोटल हमारे पास जो
इंटायर डॉक्यूमेंट्स में काउंट आ गया, दैट इज इक्वल टू 3। वाज जो है वो हमारे पास 2, एंड सेम गोज फॉर दी अदर वर्ड्स, राइट। So this is followed by a iteration and comparison with each words in our vocabulary and incrementing the vector value if the sentence has that word। हम उसको बेसिकली, अब हमने जो जॉन था, ये जो हमारे प्रीवियस देखा, ये फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास उसका वेक्टर है, और ये सेकंड सेंटेंस का हमारे पास वेक्टर है यहाँ पे, राइट। तो जो अभी हमने एक प्रोसेस को यहाँ से डिस्कस किया था कि हम बेसिकली जो है वो वेक्टर्स को जनरेट करने हैं, हमने टोकनाइज किया, हमने उस टोकनाइजेशन के प्रोसेस को अप्लाई किया ऑन ऑल सेंटेंसेस, और उसके बाद हमने वोकैबुलरी बिल्ड की और हमने वेक्टर्स। तो यहाँ पे हमने ये जो हमने एग्जाम्पल स्टेटमेंट्स ली हैं, उनके हमने यहाँ पे वेक्टर्स जो हैं वो क्रिएट कर लिए हैं यहाँ पे, राइट। सो फॉर द फर्स्ट सेंटेंस the word likes appear in second position and appear 2 times. So in the second element of our vector for sentence 1, we have 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0, right? So बैगा वर्ड इन sklearn या काउंट वेक्टराइजर की जो भी हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास है, ये बेसिकली उसमें हम उसकी डिटेल है, इनपुट कंटेंट्स है, इनकोडिंग टेक्निक, एरर, डिकोड एरर, इसके अलावा लोअर केस, प्री प्रोसेस, टोकनाइजर, स्टॉप वर्ड्स की अभी हम बात करेंगे, टोकन पैटर्न हमारे पास क्या होगा। तो इसको ज़रूर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि हमारे पास sklearn में काउंट वेक्टराइजर जो है वो किस तरह ऑपरेट हो रहा है। और स्पेशली जैसे हमने प्रोजेक्ट की बात की थी, सो आई रिकमेंड कि फ्यू स्टूडेंट्स मस्ट गो फॉर द टेक्स्ट माइनिंग जो हमारे पास है, या टेक्स्ट लर्निंग की तरफ। हम आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, आप ट्विटर से को डाटा सेट ले सकते हो, आप फेसबुक का डाटा सेट ले सकते हो, आप डिफरेंट और जो हमारे पास कोई वेब पेजेस हैं, लाइक आप किसी शॉपिंग साइट का डाटा ले सकते हैं और उससे आप कुछ ट्रेंड लर्न कर सकते हो। तो जब आप लर्न टेक्स्ट माइनिंग या टेक्स्ट लर्निंग की तरफ जाएंगे, तो जो अभी हम ये कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जो हम अभी लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, जो बैगा वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आप वहाँ पे यूज़ करोगे। सो आई रिकमेंड कि आप इनको ज़रूर देखें। यहाँ पे इनके जो पैरामीटर्स हैं उनकी डिटेल भी गिवन है। हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग्स है, फाइल आप दे रहे हैं या आप कंटेंट पास कर रहे हैं, ठीक है जी। इफ फाइल नेम द सीक्वेंस passed as an argument to fit it expected to be the list of the file name that need reading to fetch the raw content to analyze। जैसे अभी हमने बात की, अभी हमने दो सेंटेंस की बात की। ऑब्वियसली जब हम प्रैक्टिकली किसी एग्जांपल की तरफ जाते हैं, तो वी नीड टू पास of course raw contents to analyze, and it could be a big file or the files, right। यहाँ हमारे पास जो है वो सीक्वेंस ऑफ फाइल्स हो सकती हैं जो कि हम फेच करेंगे मेमोरी के अंदर, और उसके बाद जो है उसमें एनालिसिस किया जाएगा। सो इनकोडिंग के अगर हम देखें, इफ बाइट्स ऑफ फाइल आर गिवन टू एनालाइज दिस को यूज टू डिकोड, राइट। सो डिकोडिंग एरर है हमारे पास, उसमें अगर एरर है तो उस केस में जो है वो यूनिकोड डिकोड एरर रेज होगा, हम उसको इग्नोर करना है, रिप्लेस करना है। स्ट्रिप एसेंट्स हैं हमारे पास, आस्की है, ठीक है जी। सो ये हमारे पास लोअर जो है वो केस है, डिफ़ॉल्ट जो उसकी वैल्यू ट्रू है, कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर टू लोअर केस बिफोर टोकनाइजेशन, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंस नहीं कर रहे कि आइदर हमारे पास डाटा है वो लोअर केस है या अपर केस के अंदर है। सो एज आई सेड, just explore this sklearn काउंट वेक्टराइज लाइब्रेरी, और उसमें जो डिफरेंट हमारे पास पैरामीटर्स हैं, जो स्टॉप वर्ड्स हैं, अभी हम देखेंगे टोकन पैटर्न क्या है, उनको ज़रूर आप जो है वो देखिएगा। और स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट जो है वो इस टॉपिक पे अगर कोई करते हैं, तो उसमें भी ज़रूर इन चीज़ों को देखें। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ हाउ काउंट वेक्टराइजर वर्क्स। यहाँ पे हमने जो है वो sklearn में इंपोर्ट किया काउंट वेक्टराइज को। हमारे पास अभी जो कॉर्पस है, कॉर्पस मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास प्रैक्टिकली जो कॉर्पस होता है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। दीज डॉक्यूमेंट्स कुड बी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अभी हम कुछ फ्यू
स्टेटमेंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, the next is this document is the second document, and this document is the third one, and this document is the first or the fourth document, and so on. So अभी जब हमने प्रीवियसली एक एग्जांपल देखी तो हमने काउंट वेक्टराइजर को डिस्कस किया। हमने फर्स्ट जो है वो पहले इस कॉर्पोरस को हमने फिट अंडरस्कोर जो ट्रांसफॉर्म हमारे पास फंक्शन है उसको हमने पास किया। हमने यहाँ पे इनके फीचर्स को यहाँ पे अभी इनपुट करवा लिया। हमारे पास जो फीचर्स हैं जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास 4 टाइम यूज़ हुआ, एंड डॉक्यूमेंट फर्स्ट इज़ 1 सेकेंड थर्ड दिस। सो जितने भी हमारे पास यहाँ पे इस कॉर्पोरस के अंदर डॉक्यूमेंट्स थे उनके फीचर्स यहाँ हमने लेबल कर लिए। अब हर स्टेटमेंट के अंदर हम उसके उसको हमने वेक्टराइज यहाँ पे किया हुआ है तो हम उसको देख रहे हैं। लेट्स सपोज अगर हम देखें सो एंड हमारे पास जो है वो फर्स्ट में ज़ीरो है, डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारे पास 1 है, फर्स्ट जो है वो हमारे पास 1 उसकी अक्रंस है, इस जो है वो 1 है, फिर हमारे पास 1 सेकेंड 0 है, दी हमारे पास 1 है, द थर्ड इज़ 0 एंड दिस इज़ 1। तो ये हमारे पास एक वेक्टर है फॉर दिस फर्स्ट जो हमारे पास द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ दिस कॉर्पोरस कह सकते हैं, या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे ये फर्स्ट सेंटेंस और स्टेटमेंट है, राइट। सो नेक्स्ट इज नॉट ऑल वर्ड्स आर इक्वल, यानी जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं तो हमारे पास some words contain more information than the others, right? So we need to check the low information words, क्योंकि हम कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में जो हमें कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। सो हम उन वर्ड्स को जो है वो इग्नोर कर सकते हैं, और उनको इग्नोर करने से हमारे बेसिकली नंबर ऑफ़ फीचर रिड्यूस होंगे और वेक्टर साइज़ जो है वो हमारे पास रिड्यूस होगा। लेकिन इससे ओवरऑल जो हमारे पास हम इंफॉर्मेशन लॉस है वो हम बहुत ज़्यादा नहीं होगी यहाँ पे। सो वी कैन जस्ट एलिमिनेट दीज लो इंफॉर्मेशन वर्ड्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जैसे हाय, कैटी, सेबेस्टियन, विल, दी, because these words are the low information words. Why? Because these words are ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिपीटेडली ये वर्ड्स अक्सर होते हैं। सो हम इनसे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन जैसे हमारे पास ड्राइविंग है, सो इट दिस वर्ड्स could give us some meaningful information। यहाँ से हम कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मशीन है, लर्निंग है, ग्रेट है। सो वी कैन सी ओके some word contain more information than the other words, so we can just eliminate low information word while dealing with the text, right? So not all words are equal. So these words जो हमारे पास जो हमें लो इंफॉर्मेशन वर्ड्स हैं, these words are contain these words are हमारे पास जो है वो we said these words are the stop words like the, in, for, you, will, have, be, okay. So how many words will be removed when we remove stop words from hi, Katie, the machine learning class will be great, best, Sebastian, right? So हम यहाँ से आप इनको काउंट करके तो यहाँ पे आप इस बॉक्स को फिल कर सकते हो कि हम इस सेंटेंस से कितने वर्ड्स जो है वो हम रिमूव करेंगे, यानी जब हम लो इंफॉर्मेशन और स्टॉप वर्ड्स को जो है यहाँ से हम एलिमिनेट कर देंगे, राइट। सो यहाँ तक जो है दैट इज़ ऑल ऑफ, हमने यहाँ पे कुछ बेसिक अभी कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है लर्निंग फ्रॉम टेक्स्ट की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। सो यहाँ तक आप जो है वो अगर कोई क्यूरी होगी तो हम लाइव सेशंस में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। अगर हम समराइज़ करें तो हमने बैगा वर्ड्स के कॉन्सेप्ट को लर्न किया और हमने देखा कि हम बैगा वर्ड्स के कॉन्सेप्ट को
किस तरह sklearn में काउंट वेक्टराइजर लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए टेस्ट कर सकते हैं। सो आई सजेस्ट कि आप कोई एक कॉर्पोरा जो है वो जो डिफरेंट जैसे मैंने अभी बताया उसको आप ज़रूर एग्जाम्पल लें उसकी, और उस पर फिर देखें कि आप कौन सी मशीन लर्निंग टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं, और उससे हमारे पास जो है वो फर्दर क्या जो है वो रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास, राइट। सो हम नेक्स्ट क्लास में ब्रीफली बात करेंगे नेचुरल लैंग्वेज टूल किट के हवाले से भी। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है फिर आगे उसको फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।